Hello everyone. Please drop hi. Hey Neetu, thank you for joining. So, thank you for giving me opportunity to share my journey because till date I am a very happy woman. I never shared anything like this on screen. So, there are myriads of emotion. I may cry also. So, in starting me, I'm saying sorry. I think I have joined. I'm like, you have sent me invite. No, no, I think I'm hi Divyansh, how are you, dear? I think सबका dinner हो गया है. Hey Divya, hey Preeti, thank you for yesterday's session. It was really, really amazing session. So आज मैं अपनी journey share करूँगी. I know yours is like amazing one. 18 साल you have struggled, but मेरा ऐसा touch wood by God's grace मैंने इतना struggle नहीं किया. तो let few others join and then we will start. uh, if anybody wants to share or want to ask anything to me, they can easily ask without hesitation, as this is a week where we are giving awareness of autism, what exactly autism is and how parents are taking it and how their journey of parenting is somewhere hampered due to the tag of autism. So drop your share comments and let's start in another few seconds. So maximum people knows that I'm a mother of twins and I'm living in Bangalore and I'm a founder and face behind Solicitude Parenting by Ritu Jain. So this journey, hi Nikki, thank you for joining, sweetie. So maximum people knows that I'm a parenting advisor. I'm a very positive person. My energies are very high and blah 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 things. But एक time था when I was about to suicide because of the autism, because of the infertility, because of the in-laws pressure, so many pressures I took. But now when I see me 5 years, 10 years or 14 years like back, so I am always says to me that, wow Ritu, you're such a brave woman. You are really, really a torch of so many parents who are struggling in their parenting journey, or so many couples who are not able to conceive. So I'll start my journey after my marriage, as everybody is having their own wishes. I'm fond of kids because I'm having more than 15, 16 cousins and I'm the eldest in my family. So I'm very fond of kids. Even my husband is very, very fond of kids. So we start trying to conceive immediately after our marriage. And fortunately or unfortunately, I had 5 miscarriages back to back in 2 years. Yeah, so it was a very tough phase of my life.
within 2 years I lost 6 kids. My first pregnancy was twins, and within third month, like within 10th week, I lost my both twins in my pregnancy time. So my journey was not very easy, but as God has given me one bone of happiness, joke cracking, bubbly girl, so वो सब मैं overcome कर गई, and today I am here with you sharing my journey. And after my twins born, those they are from the IVF. I did my IVF, and I'm expert in IVF. If anybody wants to get any kind of guidance for infertility, for IOI, for IVF, for ICSI, anything related to fertility, they can ping me. I never charge anything for fertility kind of a thing. I'm guiding parents, and I'm guiding couples who are not able to conceive. Yeah, yeah, Preeti, I know you are Preeti Roy, and I love you. So after my twins born, with lot many complications, of course, twins pregnancy is not easy. Along with IVF, along with society tag, as we Indian are still living, we are wearing extremely hi-fi clothes, branded clothes, and we are living in a hi-fi apartments, having a bundle full of degrees, but जो thinking रहती है ना, that was still a cheapster kind of a, like गांव देहात वाली thinking. So I struggled lot. I hear lot many nonsense shit from so many peoples in my society, from my in-law side. So किसके बच्चे हैं, IVF क्या होता है, पता नहीं बच्चे ठीक होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं इन्हीं के हैं या कुछ और इशू है, हमको क्या पता किसका स्पर्म है किसका एग. सो मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट शिट अगेन. या आई रियली डोंट वांट टू, बट टच वुड मेरे दोनों बच्चों की शक्ल एक की मुझसे मिलती है, एक की उनके पापा से मिलती है. तो आपको मेरी आईज में भी फर्क दिख रहा होगा, एक थोड़ी बड़ी दिखती है, एक छोटी दिखती है. वो बिकॉज मैं इतना रोई हूँ अपने पास्ट में, इतना रोई हूँ कि आई एम डन नाउ. अभी मेरा बिल्कुल आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ दैट क्राइम पार्ट. बट येस, कभी कुछ भी याद आता है तो ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो ह्यूमन. तो जब दोनों बच्चे हुए, दे आर सिमिलर, बिल्कुल सेम फेसेस, तो वहाँ पे लोगों का मुंह बंद हो गया कि बच्चे तो इन्हीं के हैं, किसी और के नहीं हैं. बट क्या हुआ कि ऑन द 9th month आई गेव माई सन MMR, लाइक बोथ ट्विंस, क्योंकि उस टाइम मेडिकल की इतनी नॉलेज नहीं थी. एंड ही गॉट वैक्सीन इंजर्ड फ्रॉम MMR1, and he got mumps. Here he got swelling, lot of swelling, and he's a very cute chubby boy. वो जॉनसन बेबी के एड्स में जो आते हैं ना बच्चे, exactly जिज्ञांश was like that only. So we thought कि शायद से he's growing, शायद से मैंने ओवर फीड किया है, कुछ तो है. But no, he was crying like a hell. Then we reached to hospital and doctor told us that it is mumps. So I said कि how come? Last week only we gave the MMR, and how come my daughter is perfectly fine? Why he got this? So he said कि no, anything can happen. So I had a big fight with doctor because my twins are very 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 precious to me. एक कहते हैं ना कि हमको बच्चे आराम से मिल गए, मुझको आराम से नहीं मिले हैं. मैंने तो भगवान जी से स्नैच किए हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब कंसीव किया नेचुरली तो ट्विंस थे, अबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज, मिस्ड अबॉर्शन. डॉक्टर्स ने जो बोला मिस्ड अबॉर्शंस, वी आर नॉट एबल टू रूल आउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस अबॉर्शन. तो मैंने भगवान को एक ही चीज़ बोली थी, तुमने 2 लिए हैं भगवान जी, मैं 2 वापस लूँगी तुमसे. तो फॉर मी माई किड्स आर माई लाइफ, माई होल वर्ल्ड. तो फिर डॉक्टर से अच्छी खासी फाइट हुई, और उसके बाद माई सन वॉज स्टार्ट शोइंग द सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म, सो कॉल्ड ऑटिज्म. मेरी नज़र में तो पूरी दुनिया के लोग ऑटिस्टिक हैं,
क्योंकि सब में कुछ कुछ ट्रेट्स हैं ऑटिज्म वाले। तो सो कॉल्ड ऑटिज्म के ट्रेट्स चालू हुए कि ही स्टॉप गिविंग आई कांटेक्ट। हाय उर्मिला, थैंक यू फॉर जॉइनिंग स्वीटी, थैंक यू आरजू फॉर सेंडिंग मी लव। तो then he starts showing the side effects of that MMR and that those mumps. Hi Samiksha, thank you for joining. Then he starts showing the developmental delays. His eye contact was missing. He stopped responding on his name. He was always involved in his games. He doesn't want to involve with me or neither his sister. But yes, he is very, very sweet. He is not at all crying or a violent child. He's still very shy. And then we struggled a lot. Then we like start going to doctors. I would love to share their names, but my protocol don't allow me to share their names on screen. But here I visited 4 doctors in Bangalore, and in Delhi I only visited 1 doctor after here Bangalore. So my son was, for me it was misdiagnosed, completely misdiagnosed, क्योंकि उसको inflammation हुआ था. And after that I start studying a lot, क्योंकि doctor put tag on him, your child is autistic. So पहले तो autistic का I was not aware of कि इसका मतलब भी क्या होता है. टीवी पे कभी जी टीवी पे एक बच्ची का सीरियल देखा था जिसमें वो बच्ची सुसु कर देती है, बोलती नहीं है कुछ भी. तो मुझे जब वो रिकॉल हुआ तो उस टाइम मैं पैनिक अटैक में आ गई थी. आई वॉज सिंपली फ्रीज्ड कि नहीं नहीं, मेरे बच्चे को ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. दीज आर वेरी प्रीशियस, और अदरवाइज दुनिया हमको खा जाएगी कि हमने फैमिली के अगेंस्ट होके आईवीएफ किया और बहुत कुछ. मतलब लाइक सोसाइटी का थोड़ा प्रेशर था उस टाइम मुझ पे, बट अभी तो फक ऑफ इज द बेस्ट वर्ड फॉर मी. जिसको जो बकवास करनी है सिंपली नो, मतलब मैं शर्माती भी नहीं हूँ गाली देने में, क्योंकि पीपल डिजर्व दिस ओनली. तो उस टाइम बहुत प्रेशर आ गया और मेरा बेटा उसको कॉन्स्टिपेटेड हो गया, सीवियरली कॉन्स्टिपेटेड हो गया और खाता नहीं था. रात को स्वेटिंग होती थी उसको. ही डजंट वांट टू टच बाय एनीवन, ही ओनली वांट्स मी. उसको कोई टच करे या कुछ भी, ही डजंट वांट. उसके ईटिंग हैबिट्स वियर्ड हो गए. बस दूध पीना उसको बहुत पसंद था, क्योंकि छोटे बच्चे हैं. तब मुझे भी इतनी कहते हैं ना नॉलेज नहीं थी. तो तब मुझे लगता था कि इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा टैबू है और इसमें डॉक्टर्स, काउंसलर्स और जो भी रिलेटेड हैं इस फील्ड से, वो बहुत बुद्धू बनाते हैं कपल्स को जो बच्चों को लिए ट्राई कर रहे हैं, फर्टिलिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं. बट व्हेन आई गेट इनटू दिस, मैं शॉक्ड हूँ, बिल्कुल गंदे वाली शॉक्ड हूँ कि लोगों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा है और गलत गलत टैग्स लगा के बच्चों पे सिर्फ पैसा कमाने की उनके पेरेंट्स को मशीन बना ली है. और 30,000, 40,000, 50,000 पर मंथ पेरेंट्स आर पेइंग for therapies, for speech therapy, for occupational therapy, for their schooling. मतलब आप सोचिए कि 2 लाख से 6 लाख रुपए साल अगर जो आप 2-3 साल के बच्चे पे खर्चेंगे तो आप सेव क्या करेंगे. और अब तो पूरा दिन लाइक पीपल आर, पेरेंट्स आर लाइक होल डे दे नीड टू अर्न 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 अर्न, चाहे वो फेयर वे हो चाहे वो रॉन्ग वे हो, बिकॉज दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड्स नीड. उनकी थेरेपीज करानी है एंड ब्ला ब्ला थिंग्स. बट क्या हुआ कि माई गॉड, माई एंजल्स आर ऑलवेज विद मी बिकॉज आई एम अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन. दो मेरे 15 दिन जो थे जब ज्ञांश डायग्नोज हुआ ऑटिज्म से, और वो भी 4 डॉक्टर्स से, तो मेरा बिल्कुल लाइक कंप्लीट, आई वॉज डन. थैंक यू संध्या फॉर ज्वाइनिंग. तो फिर मैंने सब लिखना शुरू किया कि ये लोगों ने क्या क्या मुझको बोला, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी. तो मैंने नोट किया कि फर्स्ट टाइम व्हाट दे आर, डॉक्टर्स आर आस्किंग व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर सैलरी, डू यू ओन अ हाउस इन बैंगलोर और नॉट. तो मुझे बहुत वियर्ड लगा ये चीज़ कि अरे बच्चे को देखो यार, मेरा बच्चा बीमार है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, डोरबेल पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, किसी को ग्रीट नहीं कर रहा है, किसी को स्माइल नहीं दे रहा है.
तो उसको देखो, आपको मेरे प्रोफेशन से, मेरे हस्बैंड के प्रोफेशन से क्या मतलब है, वेदर वी आर ऑन द रेंटेड प्लेस और ओन द अपार्टमेंट, लाइक व्हाट इज द नीड ऑफ दिस शिट। तो मैंने एकदम ट्रिक करके मैंने बोला दैट आई वुड लाइक टू से द नेम ऑफ दैट प्लेस इज पेस्टिक सोसाइटी ऑफ बैंगलोर, इट इज इन इंदिरा नगर। और वहाँ के मेरे पास 16-17 केसेस, 16-17 केसेस थे जो मैंने हैंडल किए हैं और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स उन बच्चों को मिले हैं। और मैक्सिमम टाइम वहाँ पे यही होता है कि दे आर हैविंग स्लैब्स, कि आपकी किस फाइनेंशियल कैटेगरी में आप आते हो, अकॉर्डिंग टू दैट दे विल डायग्नोज योर चाइल्ड। yes, the word is very very hard, but yes, they diagnose the child on that basis, and therapy की जो कॉस्ट है, मंथली कॉस्ट जो है, वो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से करते हैं। तो आई सेड नो नो सर, वी आर नॉर्थ इंडियंस, वी डोंट ओन द अपार्टमेंट, वी आर ऑन द रेंटेड प्लेस। तो दे टुक एड्रेस एंड ऑल, we also gave address and all. And what has happened, after 3-4 days they visited my apartment and I got the notification somebody came from this place and they want to visit you. So I approved, but immediately I ran down and that person was actually checking the name plates whether we own that apartment or not. So उस टाइम पे थोड़ा झटका लगा कि ये क्या चीज है भाई। मैंने कहा why you are came here, why you are checking all these things? नो मैडम, इट्स जस्ट अ रूटीन चेकअप। मैंने कहा रूटीन चेकअप ऑफ माय अपार्टमेंट, मेरे घर का चेकअप करने आए हैं या किस लिए आए हैं? ऑन दैट डे आई कंप्लीटली डिसाइडेड आई विल नॉट फॉल अंडर द ट्रैप अगेन, बिकॉज मैंने इनफर्टिलिटी में बहुत सारा मोर देन 20 लाख रुपीज आई हैव वेस्टेड। जिस डॉक्टर ने जो कहा वो किया, और लास्ट में ये चांस हो गया था कि दैट वॉज माई लास्ट चांस कि अगर जो आपके एग से होगा तो होगा, नहीं तो यू नीड अ डोनर एग, नहीं तो आपको अडॉप्शन के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि आपका यूट्रस वीक हो गया, यू आर नॉट एबल टू कैरी चाइल्ड। तो मैंने कहा नो, आई विल नॉट फॉल अंडर दैट ट्रैप। सेम डे आई बुक माई टिकट टू दिल्ली एंड आई इमीडिएटली लाइक गो बैक टू माई ममा प्लेस। आई बिलोंग टू दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली। तो वहाँ जाके मेरे कजन्स थे, कजन्स के बच्चे थे वहाँ पे, दे माई किड्स बोथ दे एंजॉयड। एट दैट टाइम दे वर 14 months ओल्ड। और उस टाइम जिज्ञांश ने बहुत 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 रिमार्केबल चेंजेस दिखाने शुरू किए। ही स्टार्ट इन्वॉल्विंग विद हिज कजन्स, आई कॉन्टेक्ट देना शुरू किया, स्माइल देना शुरू करा। मम्मम बोला उसने, फर्स्ट वर्ड वॉज मम्मम। तब मुझको थोड़ा होप आया। देन आई विजिटेड माई पापाज फ्रेंड डॉक्टर, ही इज अ फिजिशियन। ही सेड कि नहीं बेटा, इट्स ओनली इन्फ्लेमेशन, ऑटिज्म वगैरह इट्स अ बिग टैबू, और मैक्सिमम जो बच्चे हैं, मोर देन 80% किड्स आर एक्चुअली रॉन्गली डायग्नोज्ड। तो ही इज अ वेरी सीनियर लाइक डॉक्टर, नाउ ही इज नो मोर। तो तब मुझको थोड़ा होप आया कि नहीं, मैं खुद से ही स्टडी करती हूँ, आई विल क्योर माई ओन सन, नहीं मैं थेरेपीज में नहीं भेजूंगी। बिकॉज वंस वी टुक हिम टू वन थेरेपी सेंटर एंड देयर ही क्राइड लाइक अ हेल। और उसके बाद तो बस पूछो नहीं, वो सुबकता था रात को, और उसके पापा बोलते थे कि वील गो टू पार्क, और थेरेपी सेंटर ले गए झूठ बोल के। एंड सो मैनी थिंग्स आई हैव फेस्ड विद माई सन। उस टाइम आई सेड डन डन, आई एम डन। मेरा बेटा ना बोले ऐसा ही रहे होल लाइफ, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। मुझे नहीं बुलवाना, मुझे कुछ नहीं करना, बट मैं थेरेपी सेंटर में नहीं भेजूंगी मेरे बेटे को। देयर माई स्ट्रगल, नहीं, मेरी एक बहुत अच्छी जर्नी स्टार्ट हुई पेरेंटिंग की। एंड वहाँ से मैंने अपनी पेरेंटिंग को एक्चुअली में इंजॉय करना शुरू किया, क्योंकि तब मेरे दिमाग में वो ऑटिज्म वाला टैग ही नहीं था। देन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज कॉन्स्टिपेशन फर्स्ट। उसको डिटॉक्स किया। एज आई एम जैन, तो हमारे यहाँ पे वी डोंट यूज मच एलोपैथी मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन भी नहीं ज़्यादा यूज होती हैं। येस, वी डू यूज आयुर्वेदिक मेडिसिन, और उसका मेरे पास होल्ड भी बहुत अच्छा है क्योंकि बचपन से वी यूज टू हैव दोज मेडिसिन। तो मैंने फर्स्ट आई स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज कॉन्स्टिपेशन, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज गट, क्योंकि जब मैंने पढ़ा तब पता चला कि गट इज अ सेकंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। गट माइक्रोब कुछ डिस्टर्ब्ड हैं, गट का जो एसिड है वो डिस्टर्ब होता है, तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी में, जो ब्रेन को इफेक्ट करती है। देन आई स्टार्ट स्टडिंग वैक्सीन्स, और तब पता चला कि व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स दे आर यूजिंग इन वैक्सीन्स,
और धीरे 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 आई स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल, connected, and now currently I'm working with 300 doctors globally who are anti-vaxxers, and we are having complete database where I can share a complete like guide you can say कि जो ऑटिज्म है वो मैक्सिमम टाइम वैक्सीन से हो रहा है बच्चों को. Somewhere it is genetic, yes, somewhere when the child is not able to absorb proper vitamins and minerals, it happened. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेजरली इज द वैक्सीन, जो हर पेरेंट नहीं मानता है, अभी भी नहीं मानते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जो केसेस हैं ना, वो 90% केसेस आर MMR वैक्सीन इंजर्ड ओनली, वेदर इट इज 1 और वेदर इट इज 2. तो आई स्टार्ट वर्किंग विद माई सन एंड मिराक्युलसली लाइक स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली विद इन फ्यू मंथ्स. 1 महीने में तो मैंने कॉन्स्टिपेशन उसका ठीक कर दिया था 100%, क्योंकि आई स्टॉप्ड कंप्लीटली लाइक मिल्क, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो कंप्लीटली आई लाइक कंप्लीटली बंद कर दिया था. येस आरजू, यू आर राइट कि people are actually, this word is insane. That's why I always said kids are not autistic. Who are seeing them in a that nonsense way ना, वो पागल हैं, वो ऑटिस्टिक हैं. क्योंकि बच्चे तो ऑटिस्टिक हो ही नहीं सकते. दे आर सो क्यूट, दे ओनली नीड योर लव, योर केयर, योर अटेंशन. तो विद इन फ्यू डेज हम लोग कह सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से रिकवरी स्टार्ट की. देन आई स्टार्ट ज्वाइनिंग few groups where they talk about autism, they talk about ADHD, they talk about speech delay. और हिंदी की भाषा में बोलूँ तो फलाना ढिमकाना, जो बिल्कुल ही नॉनसेंस था, मेरे लिए नॉनसेंस था. क्योंकि जब हम खुद ही अपने बच्चे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो उसकी स्पीच कहाँ से डेवलप होगी. हम खुद ही उसके साथ कोई बैठ के एक्टिविटी नहीं करेंगे तो उसके फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स कहाँ से डेवलप होंगे, कॉग्निटिव्स कैसे डेवलप होंगे. हम लोग तो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ कि हमारा बच्चे को स्पीच डिले हो गया है, माय चाइल्ड इज शोइंग टेंट्रम्स, माय चाइल्ड इज हैविंग मेल्टडाउन्स, तो चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक, सो कॉल्ड डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक को दिखा देते हैं. और वो लोग हमको किसी सेंटर में भेज देते हैं जहाँ पे उन लोगों का कमीशन बंधा रहता है. और वहाँ जाके पहले तो अननोन से तो हमारा बच्चा, ऑफ कोर्स किसी का भी बच्चा, मतलब नॉर्मल बच्चा भी जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं, दे विल नॉट अलाउ देम टू इंटरेक्ट, होल्ड देम और पुट देम ऑन देयर लैप. चीक्स को टच नहीं करने देते, और अकेले तो बिल्कुल नहीं रहते हैं अनजान लोगों के साथ बच्चे. और थेरेपी सेंटर्स में व्हाट दे आर डूइंग, वहाँ पे रूम बंद करके पेरेंट्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो थेरेपीज दे रहे हैं. थेरेपीज में क्या दे रहे हैं भगवान जाने, बच्चा तो सिर्फ रोता ही रहता है. आधा टाइम बच्चे की बाहर रोने की ही आवाज आती रहती है पागलों के जैसे. तो उसको सीखेगा कैसे when the child is completely frightened and freezed, तो कैसे करेगा. तो वहां पर जब मैंने लोगों के देखे, रिव्यूज पढ़े, बहुत सारी चीजें पढ़ी, तब मैंने पूरी रात, आई हार्डली स्लेप्ट 2 hours 3 hours in a day. I'm having 2 maids at home, my husband is very cooperative, और मैंने एक नैनी भी रख ली. उनका उसका काम था सिर्फ उन पे नजर रखना, बाकी खाना खिलाना है, वॉशरूम ले जाना है, सब मैं करती थी. एंड आई एंजॉयड थॉरली. तो नेहा, you can anytime you can connect with me. My page name is Solicitude Parenting by Ritu Jain, and Neetu ji will share my page link with you. Thank you so much Neetu for sharing. तो जब मैंने मतलब मेरी 2 घंटा 3 घंटा की नींद होती थी, पूरी रात मोबाइल लेके, लैपटॉप में टैबलेट लेके, अपना लैपटॉप लेके, बच्चे एक इधर सो रहा है, एक इधर सो रहा है, हस्बैंड दूसरे रूम में, और मैं पूरी रात पढ़ती रहती थी. और फिर मेरी दादी ने जो हमें बचपन में हम लोगों के साथ जैसे उन्होंने रेस किया है, वो सब चीज़ें, आई स्टार्ट राइटिंग, आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोज थिंग्स. मेरा लाइफ स्टाइल, एज वी आर जैन, तो हम लोगों का थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है ईटिंग पैटर्न्स. जैनिज्म इज बेस्ड ऑन साइंस, जो अब लोग मानने लगे हैं, और हम लोग तो एजिस से कर रहे हैं. तो आई स्टार्ट डूइंग दोस एवरीथिंग विद माई सन, नॉट विद ओनली माई सन, विद माई डॉटर ऑल्सो. एंड माई डॉटर इज माई रियल सेवियर, शी इज अ एंजल फॉर मी, क्योंकि शी एक्चुअली हेल्प्ड हिज ब्रदर अ लॉट. ए बोल ए चीकू, बी बोल बी, मतलब दे आर लाइक
ट्विंस हैं तो दे आर एक्चुअली इंसेपरेबल। और आज तक अगर जो मम्मी पापा उन्हें किसी को कुछ कह देना तो दोनों हम लोगों की जान खा जाते हैं कि कह कैसे दिया। तो सब कुछ किया मैंने, सब कुछ किया, पढ़ा और सब अपने बच्चे पे अप्लाई करती चली गई। एंड टच वुड एक भी लैग नहीं आया, एक भी रिग्रेशन फेस आई हैव नॉट सीन। और मेरे वो 8 महीने जो थे ना, वो भगवान जी ने मुझे लिटरली एक विंग्स दे दिए थे कि देयर इज नो चांस ऑफ फॉल। मुझे 2-3 लोगों ने बोला, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और कुछ मेरे रिलेटिव्स ने भी बोला कि रितु यू आर टेकिंग अ बिग चांस विद योर ओन चाइल्ड, डोंट टेक चांस। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, यू कैन गो टू यूएस ऑल्सो, यू कैन अफोर्ड, पैसे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों चांस ले रही हो, तुम नहीं ठीक कर सकती हो अपने बच्चे को। एंड आई चैलेंज देम कि नहीं ठीक कर दिया ना तो अपने बच्चों को मतलब किसी को गोद दे दूंगी, पालूंगी नहीं, अगर जो मैं इनकेपेबल मदर हुई। और अगर जो कैपेबल हुई तो आप लोगों को लिटरली पैरों पे रगड़ना पड़ेगी नाक। एंड दे डिड एक्चुअली, एंड आई एम सो हैप्पी। क्योंकि लोगों के दिमाग का, हम लोगों का ना एक्चुअली एक माइंडसेट रहता है कि कुछ भी हुआ है वी हैव टू रश टू डॉक्टर्स। और स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पीच, बिहेवियर, कुछ भी ऐसा है ना, तो पेरेंट्स का पैनिक जो होता है ना वो बहुत गंदे वाला होता है। वो लोग फ्रीज्ड हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं कि योर कर्मा, ड्यू टू योर कर्मास माई चाइल्ड इज लाइक दैट, तुम ऐसी हो, तुम ऐसे हो। मतलब जो फाइटिंग है ना वो गंदे वाली फाइटिंग। आई एम हैविंग 2 सिंगल पेरेंट्स जिनका बच्चों का मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ। और उनका डाइवोर्स का रीज़न ये है क्योंकि हस्बैंड को लग रहा है कि मदर बिकॉज ऑफ हर मतलब बच्चे की माँ के कर्मास इतने खराब है कि बच्चा ऑटिस्टिक है, मुझे नहीं चाहिए दीज पीपल इन माई लाइफ। तो इस तरीके के कपल्स को इश्यूज होते हैं। आई डू काउंसिल पेरेंट्स, मैं रीपेरेंटिंग कराती हूँ पेरेंट्स की। और धीरे 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 मैंने लोगों को रिप्लाई करना शुरू किया। किसी की भी कम पोस्ट आती थी, आई स्टार्ट रिप्लाइंग देम, लाइक बोलती थी कि डू कनेक्ट विद मी, आई विल गाइड यू, आई विल गाइड यू। तो फॉर इनिशियली लाइक माई जर्नी स्टार्ट, दिस सॉलिसिट्यूड पेरेंटिंग स्टार्ट्स इन February 2017, जब जिज्ञांश 100% क्योर हो गया था। और उसके बाद ये शिवानी, आई गेट बैक टू यू ऑन दिस ऑल्सो। सो उसके बाद जब वो क्योर हो गया और आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ माई लाइक वर्ड, क्योंकि मेरी पेरेंटिंग बहुत अच्छी थी। आई एम द बेस्ट वाइफ, मेरे हस्बैंड जो बोलते हैं, बाहर नहीं बोलते हैं, घर में बोलते हैं। तो बहुत मतलब मैं टॉप ऑफ द वर्ड थी। देन आई स्टार्ट हेल्पिंग पेरेंट्स अ लॉट। बट वही होता है ना, जब हम फ्री में ज्ञान देते हैं तो आधा लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं। तो वही स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, बट धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्ट गिविंग देम प्रॉपर एडवाइस, प्रॉपर एक गाइडलाइंस बना के देती थी, 10 मानिए 10 पॉइंट्स दिए, दे ओनली चूज 5, 5 किए 5 नहीं किए, तो उसमें रिजल्ट्स नहीं आएंगे। देन आई स्टार्ट चार्जिंग। और टच वुड जिस दिन से चार्ज करना स्टार्ट किया है पेरेंट्स को, 100% रिजल्ट्स हैं विद इन 2 months। एंड माई पेज इज फुल ऑफ व्हाट्सएप चैट्स, क्योंकि मैं व्हाट्सएप चैट्स ही उठा के शेयर कर देती हूँ नाम हाइड करके, क्योंकि स्टिल ऑटिज्म जो एक वर्ड है ना, बड़ा बहुत गंदा टैबू है। हम लोग सोसाइटी में नहीं बता सकते कि माई चाइल्ड इज अ स्पेशल नीड चाइल्ड, मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो हम बॉयकॉटेड हो जाते हैं। जैसे पहले टाइम में होता था ना कि जिसको बच्चे नहीं होते हैं उसको बॉयकॉट कर देते हैं कि नहीं नहीं ये कहीं पे आने जाने लायक नहीं है, शी कैन नॉट अटेंड एनी रिचुअल इन हर फैमिली स्पेशली रिलेटेड टू किड्स। तो ऐसा ही ऑटिस्टिक बच्चों के साथ भी अनफॉर्चुनेटली होता है कि उन लोगों को सोसाइटी 100% बाइकआउट कर देती है कि उनके बच्चों के साथ किसी को खेलना अलाउड नहीं करते हैं, कि नहीं नहीं उस बच्चे के साथ नहीं खेलो, वो पागल है। लिटरली जब मैं ये सुनती हूँ ना तो मेरा मन करता है खींच के इतना जोर से थप्पड़ दूं उसको कि नॉर्मल जियो भाई, और अपने बच्चों को भी एक नॉर्मल इंसान की तरह पालो। दैट इज वाई किड्स आर हैविंग इश्यूज। छोटे छोटे बच्चों में ईगो आने लग गई है, दे आर शोइंग टेंट्रम्स, they are showing nonsense shits in front of their parents, they are not respecting their grandparents। बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि हम लोगों की पेरेंटिंग जो है, वी आर नॉट रेजिंग आवर किड्स प्रॉपरली। और सिंपैथाइजिंग, एम्पैथाइजिंग, वी नीड टू टीच देम प्रॉपरली। तो
वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअली में। लेकिन ठीक है, अभी क्या करें, तभी तो पेरेंट्स हाइड करते हैं कि नहीं हम सोसाइटी में नहीं बता सकते, मेरे कलीग्स हैं फेसबुक पे, मैं नहीं कर सकती। तो मैं क्या करती हूँ कि सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके नाम हाइड कर देती हूँ, तो किसी को पता नहीं चलता। तो माई पेज इज फुल ऑफ दिस काइंड ऑफ व्हाट्सएप चैट्स वेयर पेरेंट्स आर सेइंग कि आज मेरा बच्चा बोला, आज मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट है। That why I'm sharing these things, because I am empowering parents कि भाई you are the first life skill facilitator। आपने अपने बच्चे को दूध पीना सिखाया है, बैठना सिखाया है, खाना खाना सिखाया है, स्माइल सिखाई है, तो स्पीच क्यों नहीं सिखा सकते हो? व्हाई नॉट? अभी चलना बच्चे को थोड़ा ना थेरेपिस्ट आके सिखाएगा, अभी बच्चे को स्ट्रेट लाइन पे कैसे चलना है वो तो पेरेंट्स ही सिखाएंगे ना। वी डोंट वांट therapist for that. Why you are wasting your hard earned money on those therapy centers who are only trying to make money only? I am not saying कि सभी थेरेपिस्ट खराब हैं या रिजल्ट्स नहीं हैं, बट इनिशियली जो 2-3 मंथ्स होते हैं ना, वो बच्चों को एक कनेक्शन डेवलप करने में लग जाते हैं थेरेपिस्ट के साथ। और वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे का और पेरेंट्स का जो एक बॉन्ड बनना चाहिए ना, वो हैम्पर होने लगता है। वो टाइम पे चाइल्ड अपने पेरेंट्स पे जो एक फेथ, ब्लाइंड फेथ होता है ना बच्चे को कि माय पेरेंट्स विल टेक केयर ऑफ मी, वहाँ पे वो टूटने लगता है। क्योंकि पेरेंट्स तो रोज ले जाते हैं थेरेपी सेंटर में, छोड़ देते हैं बाहर, चाहे मम्मी पापा दोनों रो रहे हो बैठ के, लेकिन दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो देयर माय वर्क स्टार्ट एक्चुअली। मैंने अभी तक आई वर्क विद मोर देन 180 पेरेंट्स ग्लोबली। आई वर्क विद पाकिस्तानीज, ईरानी, इराकी, और आई नेवर थॉट के वो पाकिस्तान से है, हमारे लाइक अगेंस्ट है कंट्री एंड ऑल। लेकिन मेरे लिए फॉर एवरी पेरेंट इज पेरेंट, सब माए, दुनिया भर की माए माए ही हैं। आई एम वर्किंग विद साउथ अफ्रीकन्स एंड यूएस पीपल, आई एम वर्किंग। तो माई वर्क इज टू एम्पावर पेरेंट कि भाई ऑटिज्म वॉटिज्म इज नथिंग। वो दिमाग में है खाली कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, मेरा बच्चा आई कॉन्टेक्ट नहीं दे रहा। हाउ किड्स विल गिव यू आई कॉन्टेक्ट इफ दे आर ऑटिस्टिक ऑल्सो? बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट गिविंग देम प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट। हम लोग क्या होता है, मोबाइल लेके बैठे हैं, हमारा आंखों मोबाइल में देख रहे हैं, बच्चा कुछ भी कर रहा है, कुछ बोल भी रहा है तो हम हूँ हाँ, प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट नहीं देंगे तो हाउ दे विल लर्न? दो वैक्सीन्स का जो ब्रेन फोग है, जो भी न्यूरोटॉक्सिन्स हैं ब्रेन के अंदर, वो ऑफकोर्स इफेक्ट करते हैं, but there is a proper manner to delete, like remove those toxins from the brain and to connect with your child, ताकि 5 year 10 years down the line आपका बच्चा आपसे डिस्कनेक्टेड ना हो। सिर्फ वो थेरेपिस्ट की ही बात सुन रहा है, काउंसलर्स की ही बात सुन रहा है, ही और शी इज नॉट एबल टू कनेक्ट विद पेरेंट्स। तो मेरा जो काम है वो एक जो लिंक है ना, उसको प्रॉपर से जोड़ने का है। एंड आई एम सुपर सुपर हैप्पी, आई एम वर्किंग 24/7 एंड यू हार्डली सी मी इन मेकअप। अभी भी मैंने वही मतलब कोम की है, बैठ गई हूँ, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन शोशा एंड ऑल, लाइक शो ऑफ मेरे बस की नहीं है करना। आई एम वर्किंग इन 4 डिफरेंट टाइम जोन्स। मेरी अभी भी स्लीप 3-4 घंटे की है। माई किड्स आर एक्चुअली प्राउड ऑफ मी, स्पेशली जिज्ञांश। वो हमेशा कहता है मम्मा यू आर सुपर मॉम। बच्चों को सुनना चाहिए, पेरेंट्स को बोलो कि चॉकलेट्स नहीं खानी है, डोनट्स नहीं खाने हैं। No, they know, they don't eat. Though they love, of course, when they are going to birthday parties and all. उनको मन होता है, वो पूछते हैं मम्मी हम खा लें क्या? तो मैं भी बोलती हूँ कि इतना सा ले लो, then I will detox you. Because I know these things are processed foods. Those are not actually meant for kids. उनका छोटा सा intestine होता है and हम लोग उनको, और एक्चुअली में जो चॉकलेट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर गिल्ट, बिकॉज वी आर वर्किंग। अभी तो कोविड में 1 ईयर से वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो वी आर नॉट गिविंग प्रॉपर टाइम। तो क्या होता है कि वी आर एक्चुअली सेटिस्फाइंग आवर गिल्ट। चलो एक चॉकलेट दे देते हैं, लेट्स गिव देम 1 piece ऑफ चॉकलेट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गिव माई टाइम। चलो एक चिप्स का पैकेट दे देते हैं बिकॉज दे आर सिटिंग अलोन वॉचिंग टीवी विदाउट मी। तो एक्चुअली जो हम लोग लत लगाते हैं ना बच्चों को, एक एडिक्शन जो लगाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर गिल्ट। तो माई थिंकिंग इज अगेन आउट ऑफ बॉक्स। मैं बॉक्स के अंदर रह के सोच ही नहीं सकती। मैं तो बच्चों को ब्लेम ही नहीं करती हूँ। फॉर मी पेरेंट्स आर द टारगेट वन, कि भैया तुम्हारी वजह से ही गलती हुई है।
whatever is the issue with their child. So here my journey, and if anybody wants to ask any question, let me scroll down my comment section. Yes, I got one question about vaccine of COVID. No need of no need of COVID vaccine. Just work on your immunity. जो इंटेस्टाइन में इतने सालों का कचरा भरा पड़ा है ना, आप उसको निकालिए. क्योंकि नॉर्मली अभी तो एक साल में लोगों को इतनी अकल आ गई है कि व्हाट वी आर ईटिंग इज आवर लाइफ. बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी एट 10 years 20 years बैक, वो हमारे बर्गर पिज्ज़ा जो पेट में अटक गए हैं, ड्राई हो गए हैं, उसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं लोगों को. इम्यूनिटी बहुत वीक है लोगों की. तो वर्क ऑन योर इम्यूनिटी, डिटॉक्स योर बॉडी प्रॉपरली. जो गार्बेज पेट में जम गया है, लिम्फेटिक नोड्स में जगह 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 जमा हुआ कचरा है, उसको निकालिए. तो आपको कोई भी कोविड वैक्सीन नहीं, कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि आवर बॉडी इटसेल्फ इज हैविंग आवर डॉक्टर इनसाइड आवर बॉडी. जैसे अभी हमें चोट लग गई, मानिए किचन में हम लोगों को बहुत चोट लगती है, लेकिन हम लोग बीइंग अ मदर, बीइंग अ वर्किंग वुमेन, हम लोग भूल जाते हैं दवाई लगाना. 2 घंटे में देखते हैं वो चोट अपने आप ही ड्राई हो गई है, ब्लड नहीं है उस पर, तो अपने आप नेचुरल हीलिंग हो जाती है. तो वी डोंट रिक्वायर्ड एलोपैथी मेडिसिन. एलोपैथी मेडिसिन आर एक्चुअली में सप्रेसिंग द इश्यूज, दे आर नॉट हेल्पिंग द चाइल्ड or ourselves. So no need of taking any kind of vaccine or any kind of allopathy medicines related to immunity. Just work on your immunity well. Okay, and okay, Rujwal and Neha, please connect with me. Neha, Neetu ji has already shared my page link with you. And yes Shivani, true, mother can do anything because mothers के अंदर एक sixth sense होती है. they can easily touch the child. बिना मतलब उसकी शक्ल देख के हमें पता चल जाता है कि आज ये अच्छा है या अब इसकी तबीयत खराब होने वाली है, बुखार होने वाला है, खांसी जुकाम होने वाला है. तो we can easily check. So any question, if anybody wants to share, they can share. Preeti ji, please connect with me. I will surely share whatever I can share with you. I can surely share to detoxification method. क्योंकि we have हमारा सबका बॉडी का मैकेनिज्म डिफरेंट है ना. वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वात पित्त कफ. तो अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन गाइड. अदरवाइज रैंडमली क्या होता है कि व्हाट पेरेंट्स आर एक्चुअली डूइंग कि यूट्यूब पे देख लिया, गूगल कर लिया, तो वो 100% कई बार क्या होता है फिट नहीं बैठता है बच्चों को. तो येस, आई विल एडवाइज यू प्रॉपरली. मैं आपको एडवाइस करती हूँ, करूँगी कि जो जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए. बट येस, इन ऑटिज्म वी नीड टू वर्क ऑन द ब्रेन फोक ऑफ द चाइल्ड ड्यू टू द न्यूरोटॉक्सिन्स. क्योंकि जब ब्रेन के अंदर इतना सारा एल्यूमिनियम और मरकरी बढ़ जाता है, अलॉन्ग विद द नेगेटिविटी जो मम्मी पापा भी देते हैं, रिलेटिव्स भी देते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी पास कर देते हैं, समहाउ सोसाइटी तो पास कर ही रही है 24/7. तो वो सब चीज़ें ना बच्चे के ब्रेन में बहुत ज़्यादा ब्रेन फोक कर देती है. ड्यू टू दैट किड्स आर नॉट एबल टू लिसन आवर इंस्ट्रक्शंस, दे आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली. तो दैट वी नीड टू वर्क ऑन द फर्स्ट, वी नीड टू वर्क ऑन द ब्रेन फॉग. येस, वी नीड टू डिटॉक्स आवर चिल्ड्रंस वेरी वेल, ताकि उनको लाइफ लॉन्ग जब बड़े हो जाए तब उन लोगों को कोई भी इलनेस ना हो. कोई भी, जिसे हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं ना आजकल, पीसीओडी, किडनी स्टोन्स, कोलेस्ट्रॉल और जो भी उल्टे सीधी डायबिटीज़, ये जो लाइफ स्किल्स, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है ना, ये नहीं होते हैं बच्चों को अगर जो हम लोगों उनको ठीक से रेस करते हैं, खाने पीने पे ध्यान ज़्यादा देते हैं. इफ़ वी आर नॉट गिविंग देम GMO फूड, इफ़ वी आर चेकिंग द वैक्सीन. आई नो फ्यू हु आर वॉचिंग एंड हु विल वॉच लेटर, वो आधे लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे कि वैक्सीन आर द मेन कॉज. बट माई एडवाइस इज टू देम इज कि प्लीज़ चेक, उसको उल्टा करके एक बार देख लो भाई, उस पर इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, उसमें इंसर्शंस रहती है जिसमें बहुत ज़्यादा छोटे वर्ड्स में कुछ कुछ लिखा रहता है. तो वो फेंकने के लिए नहीं है, प्रिंटेड है तो कुछ तो है ना. प्लीज़ चेक विद योर डॉक्टर. पीडियाट्रिक को पूछो कि
कि भाई 5 चीज़ें, 5 इंग्रेडिएंट्स ऐसे बता दो जो हमारे माँ बाप ने तो हमको बचपन में दिए नहीं है. वी हार्डली हैड 7-8 वैक्सीन्स इन आवर चाइल्डहुड, और अभी इट्स 63 नाउ इन 2020. तो एक बार पूछ लो कि ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम बच्चों को खिलाते नहीं हैं और जो बच्चों को हेल्प करेंगे. क्योंकि पहले ज़माने में तो था कि सैनिटाइजेशन इज़ नॉट गुड, पीपल आर नॉट वॉशिंग देयर हैंड्स प्रॉपरली, लिविंग फैसिलिटीज़ नहीं थी. अभी तो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड. अभी क्यों वैक्सीन, मतलब व्हाट इज देयर इन द वैक्सीन जो बच्चों की लाइफस्टाइल को, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, उनके कॉग्निटिव स्किल्स को, ब्रेन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करेगा. तो 5 इंग्रेडिएंट्स ऑनेस्टली वो नहीं बता सकेंगे. आई एम सेइंग ओनली 5. आस्क देम, और उससे एक एक चीज पूछ लेना कि भाई इस चीज की क्या चीजें हैं जो हमारे बच्चों की नीड पूरी हो जाएगी, जो हम नहीं कर सकते, वैक्सीन कर देगी. तो खाली 5 इंग्रेडिएंट्स, एंड आई कैन बेट कि वो 2 भी नहीं बता सकते हैं पीडियाट्रिक, बिकॉज मैक्सिमम पीडियाट्रिक्स आर नाउअडेज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज. And you will be shocked कि I have worked with 180 parents, more than 180 parents now. तो मेरे पास सबकी केस हिस्ट्रीज मैंने हाथों से लिखी है, एंड आई चेक्ड विद माई पेरेंट्स कि क्या क्या उन्होंने दिया है, व्हाट वाज देयर कोर्स ऑफ एक्शन व्हेन दे डायग्नोज्ड देयर चाइल्ड विद सो कॉल्ड ऑटिज्म. तो दे आर एक्चुअली क्लूलेस कि जो डॉक्टर ने कहा हमने वो माना, बिकॉज वी फर्मली बिलीव ऑन आवर डॉक्टर्स. पहले ज़माने में डॉक्टर्स भगवान होते थे, आज के दिन सिर्फ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं. एक भी लैब्स केस जाता है वैक्सीन का डॉक्टर्स के पास, पीडियाट्रिक्स के पास, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टेकिंग द फोटो ऑफ वैक्सीनेशन चार्ट, और बच्चे की जो भी उनका प्रिस्क्रिप्शन है उसको सिर्फ उनको फार्मास्यूटिकल कंपनीज में देना होता है. दे आर गेटिंग पर्क्स ऑन दैट, and that can goes up to 50 lakh rupees, apartment, foreign trips, and so many things. So I have, like, currently I have connected with more than 300 doctors, and I know कि ये कितनी गंदी मार्केट है ऑटिज्म नाम की. हाय वन्ना. तो ऑटिज्म वगैरह कुछ नहीं होता है, बट येस आई रोट वन पोएम. जब मेरा बेटा छोटा था तब मैंने लिखी थी. आई वुड लव टू शेयर दिस. शायद बहुत सारे पेरेंट्स इसके साथ ज़रूर से कनेक्ट करेंगे. तो फॉर मी ऑटिज्म इज़ अनेबल टू स्पीक और मे बी स्पीकिंग टू मच, hugging everyone or disliking touch, escaping outside or trying to hide themselves, excited flapping or inappropriate flapping. Autism varies so much. Won't wear a coat or wear one all the year around. And Santa Claus is also autistic क्योंकि he loves to be in a same way every year. He want to come from that tunnel only. He don't want to change his clothes. He never want to shave his beard. So Christmas के Santa Claus भी autistic है मेरी नज़र में. So fussy eater or would eat dirt from the ground, screaming or humming, annoying drumming, toys in the line, the same way every time because we are not giving them time. Autism varies so much, struggling to learn or has wonderful gifts. Obsession of numbers, trains, film and lifts. They are making pyramids, they are perfect in Legos, they are perfect in puzzles, spinning around, throwing things on ground, constantly spitting or aggressively hitting. Autism varies so much. Alone without friends or control every game. Sometimes they wants to dominate. Those traits came from parents. Always look different or always dress the same. Swinging on door or head banging on floor. Autism varies a lot. जब बच्चा हेड बैंग करता है ना तो पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे बच्चे में कोई कमी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो पैरासाइट्स होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से बच्चा बता नहीं पाता है, वो अंदर से उसको काटते हैं, उसको समझ नहीं आता है, वो एग्रेशन में हेड बैंग करता है और डॉक्टर्स उसको ऑटिज्म का टैग देते हैं. दिस इज़ रियली पेनफुल, रियली पेनफुल.
freaks at the dryers, keep climbing higher, can't answer questions, won't do anything they hold in their own word, or are bossy or are bold, over prepared, anxious and scared, a spectrum so wide, but they all brings us pride. When autism touches our lives, I support autism awareness always, always, always. Parents, please try to educate your kids who are normal. Let them learn how to sympathize and empathize with those kids who are struggling somewhere in their development. Don't tag them autistic kids. They are not autistic. Your parents, kids' parents are autistic who are teaching their kids. Don't play with that child. तुमको वो पागल कर देगा, उस पे भूत का साया है, हमको अपने बच्चों को बचा के रखना है. नो, every child is angel on this world, and we are the blessed parents. You can see my journey, you can watch my kids view videos on my page. They are superbly perfect. Perfect से भी ज़्यादा perfect है मेरे बच्चे. इनकी उम्र में कोई भी कृष्ण भगवान के लाइफ में कितने राक्षस आए थे वो नहीं बता सकता. मेरे बच्चे आराम से बता देते हैं. उनको पूरी महाभारत आती है, पूरी रामायण आती है, क्योंकि आई एम गिविंग देम टाइम. मैं थेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंड होके नहीं बैठी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो इट्स माई ड्यूटी टू रेज देम. सो प्लीज़ टीच योर चाइल्ड. आप अपने बच्चों को प्लीज़ उन बच्चों से अलग मत कीजिए. लेट देम इन्वॉल्व, क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन का मेजर रीज़न यही है कि दे आर नॉट अलाउड टू इन्वॉल्व इन अ नॉर्मल एटमॉस्फेयर. एंड आई कैन चैलेंज यू, अगर जो आप नॉर्मली उनको ट्रीट करेंगे ना विदाउट एनी टैग, तो वो नॉर्मल बच्चे, जो सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे हैं ना, उन लोगों को बहुत पीछे छोड़ देंगे. तो प्लीज़ डोंट टैग किड्स विद ऑटिज्म. I know they are struggling, parents are having tag, they don't believe because they have their own mindset. Give them love. पेरेंट्स को एक्सेप्ट कीजिए सोसाइटी में. उन्होंने कोई मास्टरपीस नहीं पैदा किया है, उनके कोई बुरे कर्म नहीं हैं. ये हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है और किसी भी उम्र में हो सकता है. तो ऑटिज्म इज़ एक्चुअली नथिंग फॉर मी. मैं सबसे ज़्यादा ऑटिस्टिक हूँ क्योंकि मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ, बहुत पंचुअल हूँ. मेरी मीटिंग 5-10 मिनट लेट हो जाती है तो मैं मेरे क्लाइंट को कहती हूँ रीशेड्यूल योर मीटिंग, आई डोंट वांट टू ट्रबल माय अनदर क्लाइंट. तो बहुत सारे ट्रेट्स, व्हेन वी चेक ट्रेट्स ऑफ ऑटिज्म ऑन अस, हम लोग 100% उसमें फॉल होंगे, वेदर इट कैन बी अ बॉर्डर लाइन, माइल्ड, मॉडरेट, एक्सट्रीम. तो प्लीज़ डोंट पुट टैग्स ऑन ऑटिज्म ऑन किड्स. And anybody can connect with me via my page. My services are paid. Yes, they are paid because I have stopped attracting any kind of negative energies from anyone. But yes, this month, April month, whole month, my whole services are on the discounted rate, and you will see the amazing results within 2 months that I can guarantee. And thank you all for watching me. Thank you Neetu ji for giving me opportunity to share my journey. And anybody can connect with me. I am a mother, you are mother. 24/7 anybody can ping me. Love you all and raise your kids in a proper manner. Don't be in guilt. Whatever is there, don't be in guilt. हम बच्चों को 100% ठीक कर सकते हैं if we believe on ourselves first. Yes, Rujwal, I am giving, no, there is no fixed course of mine because every child is different, every geographical condition is different, lifestyle is different, so it is completely tailor made. I don't have any PDF which I share with parents या यूट्यूब का या रिकॉर्डेड वीडियोस बना के. आई एम नॉट शेयरिंग एनी काइंड ऑफ थिंग. आई एम टेकिंग 1-to-1 सेशंस every time, 1-to-1 sessions, no PDF, no pre-recorded, no audio recorded sessions from my side. So I would love to actually, because talking therapies do wonders in anybody's life. So
anybody can connect. And thank you all for joining me tonight. Happy parenting. Enjoy your journey of parentage. Love you all.